अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे उन एक्टिविटीज़ की जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में परफॉर्म की जाती हैं इन एनी रिसर्च एक्टिविटी। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ साइंस इन रिसर्च। Starting from any research starts from the observation of the reality and then identification of the problem, and after identification of the problem and various constructs and concepts, then theoretical framework is developed and those concepts are associated, the relationships are associated, and then those relationships are stated in the form of various hypotheses. And then after hypothesizing, meanwhile we have to understand what are the constructs, what is the concept behind, and what is operational definition of those concepts within a research context. ये सब कर लेने के बाद then we go for research design, and in research design we have to set that what type of data we will collect, how we will collect, from whom we will be collecting that data. So research design is all about that, and once the data is collected, following the process that we have set in our research design, data collection is done, and then that collected data is analyzed. So analysis of data is another process, is another activity. And after analysis of data, the most important thing is interpretation of data. Interpretation of data should be that much realistic and rigorous and objective, free of biasness, that it may be helpful in implementation or in refinement of theory. If the findings of the research process, of this research process, are applied somewhere to solve a real problem, then it would be an applied research. And if the findings of the research are only used for the refinement of theory, for the development of knowledge, then it would be the pure or basic research. Now let me see one by one. Say for example, any manager first of all, let me talk about observation. Say for example, a manager is observing a decline in sales, or maybe a manager is observing that the consumers are not as much pleased or as much satisfied as they used to be. So this process of observation of the situation is what gets most of the research started. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे मैं हमेशा एग्जांपल आपको देती हूँ, से अगर हम स्टूडेंट एब्सेंटीज़म पर रिसर्च कर रहे हैं, दिस इज़ अ फिनोमेना विच मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। रियलिटी है जो ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्व की जाएगी, लेकिन उसके रीजंस को जानने के लिए हमें रिसर्च करने की ज़रूरत होगी। इसी तरीके से अगर सेल्स डिक्लाइन है, अगर कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन है, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, but the reasons need to be identified. So, in this example, the manager is to determine whether there is a real problem. If it is so, then how serious it is. This is the task that the manager have to perform आफ्टर ऑब्जर्विंग एनी फिनोमेना। और ऑब्जर्वेशन के बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होती, रूट कॉजेज़ नहीं होती, बल्कि वो आउटपुट्स होती हैं किसी भी प्रॉब्लम का, रियल प्रॉब्लम का, जो अंडर द सरफेस है, और वो हमें जो चीज़ नज़र आ रही होती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट मे बी एन आउटपुट ऑफ एनी प्रॉब्लम, और दैट कैन बी अ सिम्पटम ऑफ एनी प्रॉब्लम। हो सकता है प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जो कि इन फ्यूचर हमें फेस करना पड़ जाए, लेकिन अभी जो हमें नज़र आ रही है हो सकता है कि वो उसकी एक सिम्पटम हो। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कॉल्स फॉर सम प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग। प्रिलिमिनरी डाटा जो है वो बेसिक लेवल का डाटा है, स्टार्ट के लेवल का डाटा है। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आप कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, कुछ रिपोर्ट्स को पढ़ लेते हैं, तो ये इस स्टेज पर जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे होते हैं, डाटा जो कलेक्ट कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी डाटा। ये वो रिसर्च डाटा नहीं है जो कि एक्चुअली एज ए बिल्डिंग ब्लॉक हमने रखा हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ साइंस डाटा कलेक्शन के नाम से। ये वो डाटा नहीं है। दिस इज़ द बेसिक डाटा विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द एक्चुअल प्रॉब्लम इन द ऑब्जर्व फिनोमेना। फिर जब हम
हो सकता है इसी प्रॉब्लम को, जो अभी हमने डिस्कस की, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं फील हो रहे, किसी मैनेजर को ऑब्जर्वेशन है, तो मैनेजर हो सकता है कुछ कस्टमर से पूछे, कस्टमर सेल्समैन के बिहेवियर को ब्लेम कर सकते हैं। सेल्समैन में भी कहे कि एक्चुअली जो है वो स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही, इसलिए जो जो हम प्रोमिस करते हैं अपने कस्टमर्स को, हम वो फुलफिल नहीं कर पाते। सो देयर कैन बी a list of reasons behind। उन सबको आइडेंटिफाई करना थ्रू preliminary data gathering is important thing, so that the manager or the researcher may be able to identify the actual problem at first। ओके, अगर हम देखें तो हमने ये जो अभी दो तीन चीज़ें हमने देखी, तो इस डिस्कशन से, यानी प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग से हो सकता है सेल्स मैनेजर को जो चीज़ें मिलें, इसमें बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। लाइक salesperson might also indicate that they try to please and retain the customers by communicating the delivery dates given by the factory, or gather information help the manager to determine that the problem does exist। देयर देन कम्स अ थेरेटिकल फ्रेमवर्क। हमने यहाँ पर जो रीजंस, बहुत सारी रीजंस फाइंड आउट कर ली। सेल्समैन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसी तरह से कस्टमर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और हो सकता है द स्टाफ एट द फैक्ट्री हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। इस सब को करने के बाद हम एक थेरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन दैट गैदर्ड इंफॉर्मेशन, दैट कलेक्टेड इंफॉर्मेशन एट द प्रिलिमिनरी डाटा कलेक्शन स्टेज, जिसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने ले लिया, और उन कॉन्सेप्ट्स को हमने एक फ्रेमवर्क के अंदर एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके एक उसकी लॉजिकल नेटवर्किंग करनी है, एक कनेक्ट करना है कि क्या चीज़ किस को लीड कर रही है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें, डिलेज बाय द फैक्ट्री इन डिलीवरिंग द गुड्स, ऑब्वियसली दिस इज़ अ फैक्टर, दिस इज़ अ रीज़न। इससे क्या होता है, द नोटिफिकेशन ऑफ लेटर डिलीवरी डेट्स आर नॉट केप्ट, and the salesperson's promises cannot be fulfilled, and all of them contribute to customer dissatisfaction। यानी कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन के रीज़न सिर्फ सेल्समैन का बिहेवियर, या सेल्समैन कैन फुलफिल प्रोमिसेस, या जो लेट डिलीवरी है उसके बारे में इन्फॉर्म कर देना या ना इन्फॉर्म करना, या फिर सिर्फ फैक्ट्री से लेट डिलीवरी होना नहीं है। ये सब चीज़ें हैं जो काउंट कर रही हैं, या जो अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन में। ये हो सकता है कि उनका रोल डिफरेंट लेवल का हो, लेकिन हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ किसको लीड कर रही है, कौन सा फैक्टर किस फैक्टर को लीड कर रहा है, एंड अल्टीमेटली क्या आउटकम आ रहा है। ये हम अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर थेराइज करते हैं या कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे। फिर उसी से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। उस फ्रॉम द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सेवरल हाइपोथेसिस कैन बी जनरेटेड एंड टेस्टेड टू डिटरमिन इफ द डाटा सपोर्ट देम। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में लिया, इससे हम एक हाइपोथेसिस ये बना सकते हैं कि सेल्स पर्सनस अनफुलफिल्ड promises of the सेल्स पर्सन may lead to customer satisfaction, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। इसी तरीके से हो सकता है कि delays by the factory lead to the non-fulfillment of salesperson's promises, yeah, if the consumers are notified about the late delivery, then their dissatisfaction level would be reduced। तो हम ये जो स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, हम रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे। यानी जब हम प्रिलिमिनरी डाटा कलेक्ट कर रहे थे, उसमें हमें किसी एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारी बातें मिली थी, बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स मिले थे, कॉन्सेप्ट्स मिले थे। उन सबको हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में रख दिया, और उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हमने रिलेशंस को आइडेंटिफाई कर दिया, और उन रिलेशनशिप्स को जब हमने स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखा, तो हम और स्टेटमेंट्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, दे मस्ट बी टेस्टेबल, क्योंकि हमने उन स्टेटमेंट्स को बनाया ही इसलिए है कि हम उसको टेस्ट कर सकें, और हमारे डाटा जो है वो उसको सपोर्ट कर सके।
then concepts are then operational defined so that they can be measured. अच्छा, concepts और concepts क्या होते हैं और operationally कैसे define किए जाते हैं, इसके बारे में हम इन अपनी coming classes में डिटेल में देखेंगे. For the time being आप समझ लें कि अगर हम कह रहे हैं कि consumer dissatisfied है, तो dissatisfaction को कैसे measure करेंगे. डिससेटिस्फेक्शन, इफ डिससेटिस्फेक्शन इज अ कॉन्सेप्ट, तो उस कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनली अपने रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि इन आर रिसर्च, in our scenario, in our working scenario, what does this mean by a dissatisfaction. कैसे पता चलेगी. Consumers are not buying, consumers are feeling annoying, consumer are saying something negative, or anything. Maybe they are not visiting the outlet, they are not receiving the calls. कोई भी चीज़ जो कि ये डिटरमिन करे, उन सब फैक्टर्स को, उन सब चीज़ों को हमें इस कॉन्सेप्ट का पार्ट बनाना होगा और हमें उस अपने एक कॉन्सेप्ट को, जिसे हम कह रहे हैं कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, ऑपरेशनली डिफाइन करना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि पार्ट बन रहे हैं डिससेटिस्फेक्शन का, या जो अल्टीमेटली डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं. तो हम ऑपरेशनली डिफाइन करेंगे अपने कंस्ट्रक्ट्स को सो दैट दे कैन बी मेजर्ड. इसके बाद हम आ जाते हैं जनाब अपने नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ साइंस इन रिसर्च की तरफ, दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन मैंने आपको पहले बताया कि इसमें सब ये डिसीजन सेट किए जाते हैं कि कौन सा डाटा कलेक्ट किया जाएगा इन रिसर्च, किस तरीके से एनालाइज किया जाएगा और किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, और उस इंटरप्रिटेशन के बाद हमारे पास किस तरीके से हमारे प्रॉब्लम्स का सलूशन आएगा. अच्छा, यहाँ पर दो अप्रोचेस यूज़ होती हैं, डिडक्शन और इंडक्शन. इन दोनों अप्रोचेस की मदद से हम अपनी रिसर्च कर सकते हैं, या जो भी हमें प्रॉब्लम फेस हो रहा है, जो भी इशू फेस हो रहा है, हम उसका सलूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. प्रोसेस ऑफ इंडक्शन एंड प्रोसेस ऑफ डिडक्शन, या फिर कम्बिनेशन ऑफ टू. बेसिकली दीज टू प्रोसेसेस लीड टू different types of researches, to different attitudes of researches. आप देखें कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है या जो डिडक्टिव मेथड है, इसमें थ्योरी ऑलरेडी डेवलप्ड होती है. उस डेवलप्ड थ्योरी से हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, और उन फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस के को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं. सो इसमें क्या होता है कि एक थ्योरी, ऑलरेडी सेट थ्योरी अवेलेबल है, एक जनरल फिनोमेना अवेलेबल है, और हमने उस फिनोमेना से उसको हमने डिड्यूस किया, उससे किसी ख़ास एम्पिरिकल फाइंडिंग्स को, और हमने अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया. लेकिन जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, ये उसके पैरेलल में इस तरह से चल रही होती है कि हमने किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व किया, हमने कुछ देखा, फिर हमने उस फिनोमेना के बारे में डिफरेंट लोगों से पूछा, या हमने इंटरव्यूज़ किए या डाटा कलेक्ट किया, और वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव नेचर का हमारा डाटा होगा. फिर हमने उस डाटा के अंदर पैटर्न्स को एनालाइज किया. मैं आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहूँ कि लोग जो हैं वो मास यूज़ करते हैं, मास यूज़ नहीं करते हमारे यहाँ, तो हम अगर इस फिनोमेना को कि मास क्यों यूज़ नहीं करते, उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके ऊपर अगर हम लोगों को इंटरव्यू करें, ऑब्ज़र्व करें, कंटेंट एनालिसिस करें, और हम ये देखें कि लोगों के क्या बिहेवियर्स हैं, क्या रीज़न्स हैं कि वो क्यों मास्क को यूज़ नहीं करते, और फिर हम उन उन आंसर्स में से जो हमें इंटरव्यूज़ की बेसिस पर मिले हैं, हम डिफरेंट थीम्स आइडेंटिफाई कर लें, और उन थीम्स की बेसिस पे हम डिफरेंट फैक्टर्स का आपस में रिलेशनशिप डेवलप कर लें, और उन रिलेशंस को एक्सप्लेन करते हुए हम कोई नई थ्योरी सेट करके स्टेटमेंट दें, नई थ्योरी डेवलप करें. तो ये होता है इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें हमने किसी फिनोमेना को ऑब्ज़र्व किया, और उस फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करने के बाद हमने डिफरेंट पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए और डिफरेंट रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई किया, और उन रिलेशनशिप्स को हमने एक थ्योरी की फॉर्म में इंड्यूस किया इन द बॉडी ऑफ नॉलेज. तो डिडक्शन में हम ऑलरेडी जो अवेलेबल थ्योरी या कॉन्सेप्ट्स हैं
वहीं से फॉर्मुलेट करते हैं अपने हाइपोथेसिस। और लेकिन यहाँ हम इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करके उसी फिनोमेना को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और उसको एक्सप्लोर करने के दौरान हमें हमारी जो फाइंडिंग्स होती हैं हम उन फाइंडिंग्स को रिलेट करते हैं और उन रिलेशनशिप्स की बेसिस पे कोई नई थ्योरी डेवलप कर रहे होते हैं। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम समझ सकें कि थ्योरी क्या होती है, क्योंकि यहाँ हम बहुत से वर्ड्स हमने यूज़ किए पीछे, थ्योरी का, कॉन्सेप्ट का, इसी तरह प्रपोजिशंस का वर्ड आपने सुना है। सो लेट वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। थ्योरी क्या है? थ्योरी बेसिकली एक सिस्टमैटिक एंड जनरल थ्योरी इज़ अ सिस्टमैटिक एंड जनरल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन समथिंग। किसी भी चीज़ को जब एक्सप्लेन किया जाता है, लाइक अ सजेस्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, say why do people commit crimes, or why do people get married, or how does the media affect us, or how is our identity shaped by culture. If we are trying to find out the answers for these questions, तो जो हमारे पास जो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है बेसिकली उसको हम कहते हैं थ्योरी। लेकिन थ्योरी को अगर हम डिफाइन करें इन द सिंपल वर्ड, ये एक सेट ऑफ प्रपोजिशंस हैं that are used as principles of explanation of the apparent relationship of certain observed phenomena। कोई भी phenomena हमने observe किया, जैसे हमने अभी कहा कि people commit some certain crimes या media have some effects, तो वो क्या effects हैं इस फिनोमेना के ऊपर। हम जब कुछ सेट ऑफ प्रपोजिशंस बना लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स बना लेते हैं, और उन स्टेटमेंट्स में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं थ्योरी। किसी भी ऑब्जर्व फिनोमेना को एक्सप्लेन जो कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रपोजिशंस, ये होती है theory। और key elements in this definition is proposition, so there's a need to understand the what is proposition. Proposition is a statement concerned with the logical relationship among concepts। अब यहाँ important चीज़ हमारे पास समझने के लिए concept है, लेकिन proposition क्या है? ये different concepts के दरमियान relationship है। जैसे मैंने अभी कहा, dissatisfaction is a concept, and salesman's behavior is a concept। सेल्समैन का बिहेवियर अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, किसको बिहेवियर हम कहते हैं, और उसकी वजह से डिससेटिस्फेक्शन होती है या नहीं होती है। अब डिससेटिस्फेक्शन इटसेल्फ क्या होती है? तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। इन दो कॉन्सेप्ट्स को जब हम लॉजिकली किसी रिलेशनशिप में बता सकते हैं तो दैट इज़ अ प्रपोजिशन। इफ़ वी कैन सेट अ लॉजिकल स्टेटमेंट that may be explaining the relationship among these concepts, तो ये होगी proposition। अच्छा, proposition और hypothesis को हमने आपस में mix नहीं करना। proposition के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्टेबल हो, जबकि hypothesis के लिए ये ज़रूरी है कि वो टेस्टेबल स्टेटमेंट हो। propositions may or may not be testable, but hypothesis should always be a testable। Both are statements. Proposition is also a statement, but proposition is not such a statement that is supposed to be statistically analyzed and statistically tested ever। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स के रिलेशनशिप्स को बता रही होती है, और उन रिलेशनशिप्स को प्रूव करने के लिए हमें हाइपोथेसिस डेवलप करने की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, इसके अगर हम डेफिनेशन को थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करें या थोड़ा मज़ीद देखें तो लॉजिकल आर्गूमेंट है विच इज़ एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्व्ड रियलिटी। अच्छा, रियलिटी की एब्स्ट्रैक्शन जो होती है वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता है, और थ्योरी इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि थ्योरी बनती है प्रपोजिशन से, प्रपोजिशंस बनते हैं कॉन्सेप्ट से, और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी होता है। ठीक हो गया? यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को हम कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। हमने जो भी ऑब्जर्वेशन हमने की, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स एंड रियलिटी, उसको हम नाम दे देते हैं कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट से फिर बनती हैं प्रपोजिशंस, क्योंकि प्रपोजिशन क्या है? इट्स अ लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। और प्रपोजिशन से थ्योरी डेवलप होती है। थ्योरी क्या है? इट्स अ सेट ऑफ डिफरेंट प्रपोजिशन जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के रिलेशनशिप्स को
एक्सप्लेन किया गया होता है टू बेटर एक्सप्लेन अ फिनोमेना, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होता है, किसी एक सिचुएशन के बारे में पर्टिकुलर नहीं होता, किसी एक फैक्ट के बारे में नहीं होता। इसीलिए थीरी जो है वो जनरलाइजेबल होती है डिफरेंट सिचुएशंस में, किसी एक थीरी की फाइंडिंग, क्योंकि थीरीज एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर होती हैं और उनकी फाइंडिंग डिफरेंट सिचुएशंस में हेल्पफुल होती हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेना. So let we have a definition or understanding of the concept. Concept क्या है? It's a generalized idea about a class of object, attributes, occurrences or processes that has given a name. कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई एट्रीब्यूट हो सकता है, कोई करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, कोई प्रोसेस हो सकता है जिसको हमने कोई नाम दे दिया, उसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं. For example, leadership is a concept, productivity is a concept, morale, employee morale, or student morale, or learners morale, or trainee morale. These are the concepts. It's similarly we have we used to use the word motivation. Motivation is again a concept. What is motivation? We need to basically ऑपरेशनलाइज द वर्ड मोटिवेशन. अगर हम मोटिवेशन को किसी ख़ास सिचुएशन के मुताबिक एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो हमें मोटिवेशन को ऑपरेशनली डिफ़ाइन करना पड़ेगा, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि इन सर्टेन सिनेरियो व्हाट डज अस मीन, व्हाट डज इट मीन बाय मोटिवेशन, किसी सिचुएशन के मुताबिक. तो मोटिवेशन एक कॉन्सेप्ट है जो कि रियलिटी की एब्स्ट्रैक्शन है. रियलिटी को एक नाम दिया गया है, यानी लोग मैं अगर स्टूडेंट्स की सेंस में बात करूं कि स्टूडेंट्स क्लास में एक्टिव होके बैठे होते हैं और मैं उसके लिए कह देती हूँ स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड, तो इट्स एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी. स्टूडेंट क्लास में एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं एंड आई एम यूजिंग द स्टेटमेंट दैट स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड. तो मोटिवेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने एक रियलिटी की एब्स्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया है. ठीक है, इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें कि ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स रियलिटी, ये जो होती है ये एम्पिरिकल लेवल पे होती है. एम्पिरिकल लेवल पे मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया आपको कि मैंने एम्पिरिकल लेवल पे ऑब्जर्व किया दैट स्टूडेंट्स आर हैप्पी इन द क्लास और स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, और मैंने उसको एक कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया, मैंने कहा स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड. एक्चुअली व्हाट स्टूडेंट्स वर डूइंग, दे वर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, और उसको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में जब मैंने बोला तो आई सेड दैट स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड. तो मोटिवेशन, स्टूडेंट मोटिवेशन जो है ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल का कॉन्सेप्ट है. एम्पिरिकल लेवल पर जो रियलिटी ऑब्जर्व की गई और एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जो कॉन्सेप्ट हमने उसको नाम दिया. जो रिसर्च में हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो हम कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को हम ऑपरेशनली डिफ़ाइन करके ले रहे होते हैं. जितने भी हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं या जितने भी हमारे वेरिएबल्स बनते हैं वो इन कॉन्सेप्ट से फर्दर आइडेंटिफाई होते हैं, आगे जाके आइडेंटिफाई होते हैं कॉन्सेप्ट से. अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट लेडर कैसे डेवलप होता है, देखें सबसे पहले रियलिटी है. से फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बनाना, इट्स अ रियलिटी, राइट, ऑब्जर्वेबल रियलिटी. इसका नाम बनाना जो है वो हमने रख दिया और उसको मज़ीद एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे अगर हम बोलें तो वी कैन से दैट इट्स अ फ्रूट, right, which is closer to reality, but it's not actually giving the name of that thing. तो इस ऑब्जेक्ट के लिए वर्ड यूज ऑफ वर्ड फ्रूट इज अ कॉन्सेप्ट. इसी तरीके से अगर हम चलें तो हम इसको वेजिटेशन भी कह सकते हैं, विच इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट, द फर्दर एब्स्ट्रैक्टेड लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट. Hopefully, you have understood the idea or the difference between concepts, propositions, and theories, and the different building blocks of science and research. In our coming lecture, we will be discussing about the hypothetical deductive method and getting further explanation of these concepts. Thank you.